Hi everyone, welcome to lecture number 3 of equations in one variable. This lecture series is based on 8th standard math textbook of Maharashtra State. In this lecture, we are going to learn application of equations in one variable to real world problems. So before we begin, if you have any doubts, queries and suggestions during the lecture, you can write it down in comment box or you can share it on our Facebook and Instagram pages. So let's begin with lecture number 3. Now in lecture number 1 and 2, we have covered these steps to solve equations in one variable. And we have also solved practice set based on this concept. So now we will learn how to apply this equations in one variable concept to real world problems. Now to solve the word problems based on equations in one variable. These word problems are real world problems to which we have to apply equations in one variable concept and then solve them. And then after solution, we have to relate that solution with the problem which is given to us. Now, these are 6 steps that are used to solve the word problems. First one is read the problem carefully. Suppose a problem is given to you, you have to read it carefully. उसे ठीक से पढ़ लेना है. फिर second is identify the unknown variables. So after reading carefully, you have to identify the unknown variables. Third is identify the reference and condition statement. So what you have to do while reading, after reading, you have to understand the given problem first. Then you have to identify unknown variables. Then these variables will be interrelated with each other. So the statements that give interrelations of the variable is known as reference statement. And the condition statement will be the statement which will help us to form equation in one variable. So you have to identify these two statements. This is reference and condition statement. Then using this reference and condition statement, you have to form an equation in one variable. You have to form an equation in one variable using these given conditions. After forming equations in one variable, you have to solve that equation in one variable using these steps which we have learned in lecture number 1 and 2. After using these steps and solving the equation, you will get the value of unknown variable. Once you get the value of unknown variable, you have to relate the answer with the problem statement to obtain the final answer. So these are the 6 steps that we will be using to solve word problems based on equation in one variable. So you just remember these steps. We will use it while solving the problems based on this concept. Now, the first basic concept we will learn about the word problems. Basic concept of word problems based on age. Now, we will learn the basic concepts of word problems related to age. Suppose my age is X, then my father's age is 32 more than my age. So how we will write this statement in mathematical form?
My father's age is 32 more than my age. So what is my age here? My age is X. So my father's age is 32 more than my age. So my father's age will be 32 more. 32 more. More means plus than my age. So this is how this statement is converted into mathematical form. My father's age क्या है यहाँ पर 32 years है. 32 years more than my age. मतलब मेरी एज से 32 years ज़्यादा है my father's age. So in mathematical form we will write it in this way. 32 more. more मतलब यहाँ पर प्लस करना है, तो more than my age. तो इस तरह से हमने इस गिवन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट वी विल लुक. My friend's age is 5 more than half of my age. So my friend's age is 5 more. मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 5 more. इस तरह से 5 more मतलब 5 plus 5 more than half of my age. Half of my age क्या है? तो my age क्या है यहाँ पर x है और उसका हाफ करना है, तो x अपॉन 2. तो ये हुआ इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म. तो इस तरह से आपको ये जो गिवन स्टेटमेंट होते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते जाना है. तो इस तरह से मैंने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज. तो ये हुआ 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज. माई एज क्या है यहाँ पर x है, तो ये क्या हुआ हाफ ऑफ माई एज x अपॉन 2. So now we will move to next statement. My grandmother's age is 10 more than 5 times my age. तो my grandmother's age क्या है यहाँ पर 10 more than 5 times my age. तो यहाँ पर मैं कैसा लिखूंगा 10 more than मतलब 10 more 10 more then 5 times my age. 5 times my age मतलब 5 times my age क्या है यहाँ पर x है, तो ये हुआ 10 more than 5 times my age. तो इस तरह से हमने ये जो स्टेटमेंट है इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर. माई सिस्टर इज 4 years यंगर टू मी. मतलब माई सिस्टर इज 4 years यंगर टू मी. यंगर मतलब 4 years छोटी. एल्डर मतलब बड़ा. एल्डर मतलब आपसे बड़ा और यंगर मतलब आपसे छोटा. जो यंगर होता है उसकी एज आपसे कम होगी और जो एल्डर होगा उसकी एज आपसे ज्यादा होगी. तो यहाँ पर यंगर की बात हो रही है, तो मतलब आपकी एज से 4 years कम होगा. तो ये आपकी एज क्या है x है और ये 4 years यंगर है, मतलब 4 years यंगर मतलब my age minus 4 will be 4 years younger to me. So this is age of sister. Now my mother's age is 3 times of my age. 3 times मतलब क्या है 3 into x. टाइम्स मतलब क्या होता है 3 टाइम्स. इस तरह से लिखा जाता है. अगर वो 4 टाइम्स है तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाय और जो वैल्यू है उसका. तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है. यहाँ पर क्या है 3 टाइम्स ऑफ माई एज, तो मैंने इसे इस तरह से लिखा 3x. तो अभी ये सब क्या थी रेफरेंस स्टेटमेंट थे. यहाँ से क्या पता चल रहा था, यहाँ से हमें वेरिएबल्स के साथ अननोन वेरिएबल्स का और जो उससे रिलेटेड बाकी वेरिएबल्स है उनका हमें रिलेशंस पता चल रहा था. तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई माई फ्रेंड्स एज इज 12. तो
माई फ्रेंड्स एज इज 12, मतलब फ्रेंड का एज क्या है, 12 दिया गया है। माई फ्रेंड का एज क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो अभी इससे यूज करके मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, माई एज फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड्स एज क्या है, 12 है। लेकिन यहाँ पर माई फ्रेंड्स एज क्या है, 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज। तो मैं क्या करूंगा, फ्रेंड्स एज क्या है यहाँ पर, 12 है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स एज क्या दिया है, 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज को 12 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि माई फ्रेंड्स एज क्या है यहाँ पर, 5 + 12, 5 + x/2, मतलब 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज, ये दिया गया है हमें। और यहाँ पर माई फ्रेंड का एज क्या दिया है, 12 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एज एक ही है। तो मैंने क्या किया, इस कंडीशन स्टेटमेंट को यूज किया और इन दोनों को इक्वेट कर लिया। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर, 12। तो 12 इज इक्वल टू 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज। माई फ्रेंड्स एज क्या था, 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज ना। तो मैंने इसे इस तरह से लिखा है। फादर का एज क्या था, 32 मोर देन माई एज। ग्रैंड मदर का एज क्या था, 10 मोर देन 5 टाइम्स माई एज। सिस्टर एज क्या था, 4 years यंगर टू मी, मतलब मेरे से 4 साल छोटी। तो ये हुआ x-4। तो मदर एज क्या था, 3 times था। और फ्रेंड्स एज क्या था, 12। तो फ्रेंड्स एज 12 था, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रेंड्स एज और माई एज का रिलेशन दिया गया है। तो मैंने फ्रेंड्स एज को 12 से इक्वेट कर लिया। तो अभी देखिए, नंबर्स को एक साइड लेना है और वेरिएबल्स को एक साइड लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 12 - 5 क्या आएगा, 12 - 5 इज इक्वल टू x/2। तो 12 - 5 क्या है, 7 इज इक्वल टू x/2। तो मैं क्या करूँगा, 2x से डिवाइडेड है तो दूसरी से इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड से। तो ये 7 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो मुझे x मिला। देयरफॉर x विल बी 7 × 2 = 14। तो अभी हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। लेकिन x क्या है यहाँ पर, x इज माई एज, तो माई एज विल बी 14 years। तो इस तरह से हमें माई एज की वैल्यू मिल गई, 14 years। तो अभी माई एज की वैल्यू 14 years मिल गई है। तो माई फादर्स एज क्या होगी, 32 + 14, 32 + 14, that will be equal to 6, 4, 46 years. So this will be age of father. My grandmother's age is 10 more than 5 times my age. तो ये grandmother's का एज क्या होगा, 5, 10 + 5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है, 14। तो ग्रैंडमदर का एज क्या होगा, 10 + 14 5 70। ग्रैंडमदर्स एज विल बी 80 years। तो ये हुआ ग्रैंडमदर का एज। अभी सिस्टर एज क्या होगा, 4 years यंगर है ना, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी आपका, 4, 14 - 4। तो सिस्टर एज विल बी 10 years। अभी यहाँ पर देख, माई मदर एज इज 3 times माई एज, तो मतलब 3 × माई एज क्या है यहाँ पर, x है, और x की वैल्यू क्या है, 14 है। तो 14 3 क्या है, 42 years। दिस इज माई मदर्स एज। तो इस तरह से हमने
क्या किया, सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दिया था, ये हमें स्टेटमेंट्स दिए गए थे कुछ, तो इन स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया, उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हमें, ये अननोन वेरिएबल के साथ कुछ रिलेशन बना रहे, तो ये हुए हमारे रेफरेंस स्टेटमेंट। फिर हमें लास्ट में एक कंडीशन स्टेटमेंट दिया गया। इस कंडीशन स्टेटमेंट से हमें ये जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये हमें मिल गया। फिर हमें इसे सॉल्व करके माई एज की वैल्यू मिली। फिर इस एक्स की वैल्यू को हमने यूज किया बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। फादर सेज, फ्रेंड सेज, ग्रैंड मदर सेज, सिस्टर सेज और मदर सेज, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एक्स की वैल्यू को यूज किया। फिर इन वैल्यूज को हमने क्वेश्चंस के साथ रिलेट किया। तो क्वेश्चन क्या था, हमें एज फाइंड आउट करनी थी, तो ये एज हमें मिल गया है। तो इस तरह से हम एज बेस्ड वर्क एज पर बेस्ड वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल शेप। तो अभी ज्योमेट्रिकल शेप पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ब्रेड, इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस तरह से होता है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, लेंथ होती है, ये वही लॉन्गेस्ट साइड, और ये जो शॉर्टेस्ट साइड होती है ये ब्रेड्थ होती है ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या दिया है, लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, मतलब अगर लेंथ को हम x एज्यूम करते हैं तो ब्रेड्थ विल बी 3 टाइम्स ऑफ x, दैट विल बी, सॉरी सर, अगर हम ब्रेड को x एज्यूम करते हैं तो हमारी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ब्रेड्थ, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड क्या है यहाँ पर x है, तो लेंथ क्या होगी 3 टाइम्स ऑफ x। तो हमें यहाँ पर क्या किया, ब्रेड को एज्यूम किया, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, यहाँ पर सेंटीमीटर है पेरीमीटर, यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर x सेंटीमीटर एज्यूम करें। तो हमें ब्रेड्थ क्या मिलेगी, लेंथ क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, 3x सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन को पहले रीड किया, फिर उसके बाद अननोन वेरिएबल क्या है ये फाइंड आउट किया। यहाँ पर अननोन वेरिएबल क्या है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर हमने क्या किया, कंडीशन स्टेटमेंट ढूंढा, सॉरी कंडीशन रेफरेंस स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट दोनों भी ढूंढा। अभी रेफरेंस स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए ये रेफरेंस स्टेटमेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है, अननोन वेरिएबल्स किस तरह से यूज किया गया है यहाँ पर। देखिए उससे हमें पता चलता है कि रेफरेंस स्टेटमेंट क्या है। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर ब्रेड क्या है उसे x एज्यूम किया, फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें यहाँ से मिल गया विच इज 3x। तो ये था रेफरेंस स्टेटमेंट। अभी कंडीशन स्टेटमेंट देखिए, ये कंडीशन स्टेटमेंट है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, ये हमें यहाँ पर दी गई है, तो ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। L क्या है 3x और B क्या है x है, दैट इज इक्वल टू 40। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 क्या है, इस टर्म से मल्टीप्लाइड है, तो जब ये इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हुआ 40/2, और ये जो 3x प्लस x है ये क्या आ जाएगा 4x। अभी ये 4 क्या है, x से मल्टीप्लाइड है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या करेगा, दूसरी साइड को डिवाइड करेगा। तो दूसरी साइड में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 20 जा 40, तो ये 20 इधर आ जाएगा। और ये 4x से मल्टीप्लाइड है, तो इक्वल के दूसरे साइड में गए तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुआ x इज इक्वल टू 20/4। तो आगे सॉल्व करने के बाद देयर फोर आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसे अभी इस गिवन सॉल्यूशन को हमारा जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, x क्या है, x इज इक्वल टू 5, मतलब x क्या है यहाँ पर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या मिला, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 3x, मतलब 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह से हम सॉल्व करते क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप यूजिंग इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो गिवन स्टेटमेंट होता है उसे रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स क्या है, उनको फाइंड आउट करना है। फिर इन अननोन वेरिएबल्स को यूजिंग रेफरेंस स्टेटमेंट, देखिए ये रेफरेंस स्टेटमेंट है, यूजिंग रेफरेंस स्टेटमेंट इन अननोन वेरिएबल्स को रिलेट करना है। इस तरह से हमने इन दोनों को रिलेट किया कि ये जो अननोन वेरिएबल है x और ये लेंथ इसका 3x, तो इनका रिलेशन क्या है, ये इस तरह से इंटर रिलेटेड है। तो ये हुआ रेफरेंस स्टेटमेंट का यूज। फिर हम क्या करते हैं, यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। ये देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या फॉर्म करते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरह से इस स्टेप में हमने इक्वेशन इन वन वेरिएबल को फॉर्म किया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको फॉर्म किया। तो अभी ये फॉर्म करने के बाद आगे आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है इन लेक्चर 1 एंड 2। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली लैंड के कर चुके हैं तो आप उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, ताकि आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं इसका अच्छे से आइडिया आ जाए। तो फिर इस इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आगे सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है। तो फिर इस x की वैल्यू को यूज करके जो प्रॉब्लम में दिए गए वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर वेरिएबल ये है और ये भी एक वेरिएबल है, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के बाद इस तरह से ये जो प्रॉब्लम का गिवन स्टेटमेंट है उससे ये सॉल्यूशन को हमने रिलेट कर दिया। तो इस तरह से हमें
अननोन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर लिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए। तो बढ़ते आगे। अभी हम एक सॉल्व एग्जांपल इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। सॉल्यूशन, जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ यंगर ब्रदर। मतलब जोसेफ है, ये जोसेफ है और ये उसका भाई है छोटा ब्रदर। तो जोसेफ का वेट क्या है, 2 times ऑफ हिज यंगर ब्रदर। जोसेफ का वेट क्या है, 2 times ऑफ द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो अगर यंगर ब्रदर का वेट x मान लिया जाए तो इसका वेट क्या होगा, जोसेफ का वेट 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रेफरेंस स्टेटमेंट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे जो प्रॉब्लम में दिए गए दो वेरिएबल्स है ये कैसे इस इंटर रिलेटेड है, ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो ये हुआ रेफरेंस स्टेटमेंट। क्या हुआ, जोसेफ वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर का वेट क्या है, x kg। तो इसका जोसेफ का वेट क्या होगा, 2x kg, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, 2 times दिया गया है। फाइंड द फाइंड जोसेफ वेट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जोसेफ का वेट फाइंड आउट करना है, मतलब 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ, अभी देखिए यहाँ पर इफ मतलब क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है। यहाँ से हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म करने के लिए कैसे फॉर्म करना है, इस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म करना है। तो ये बन जाएगी हमारी कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट, ये हुई रेफरेंस स्टेटमेंट। इससे हमें पता चला कि वेरिएबल्स किस तरह से इंटर रिलेटेड है। और यहाँ से हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म करने में हेल्प होगी। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ से हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म करने में हेल्प होगी। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जोसेफ का वेट फाइंड आउट करना है। इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg। तो मतलब यहाँ पर 2x प्लस x, ये क्या होगा, 63 kg। सम बोला है ना, तो सम मतलब क्या होगा, इनका एडिशन होगा। तो इनका एडिशन क्या है, इन दोनों के वेट का 63 kg। तो इससे हमें पता चला कि ये जो दी हुई कंडीशन है, इससे हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म कर लिया है। तो अभी फॉर्म करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी इसे अच्छे से लिख लेंगे। तो हम अभी सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। जोसेफ वेट इज 2 times the weight of his younger brother. Find Joseph's weight if sum of their weights is 63 kg। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट वेट ऑफ यंगर ब्रदर बी x kg। तो वेट ऑफ जोसेफ क्या होगा, वेट ऑफ जोसेफ क्या होगा, Joseph's weight is 2 times the weight of
हिज यंगर ब्रदर। तो मतलब यंगर ब्रदर का एज x है, तो जोसेफ का वेट क्या होगा 2x। फाइंड द जोसेफ्स वेट इफ सम ऑफ देयर वेट्स इज 63 kg। तो अभी क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दी गई है, उन दोनों के वेट का सम क्या है 63 kg। तो मतलब यहाँ पर जोसेफ का वेट क्या है 2x है, और उसके यंगर ब्रदर का एज क्या है x है, तो इन दोनों के वेट का सम क्या है 63 kg। तो इस तरह से हमने ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इससे हमने यूज करके ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म किया है। और ये जो रेफरेंस स्टेटमेंट थी ऊपर वाली, इससे हमें ये जो गिवन वेरिएबल्स है ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है, ये जो अननोन वेरिएबल्स है ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है, ये हमें इस रेफरेंस स्टेटमेंट से पता चला। तो अभी आपको पता है कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 3x, दैट इज इक्वल टू 63। देयरफॉर अभी ये 3x से मल्टीप्लाइड है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है 21। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, जोसेफ एज। तो जोसेफ एज क्या है, जोसेफ्स एज इज 2x। तो ये जोसेफ का एज क्या होगा 2 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू 42 ईयर्स। तो इस तरह से हमें जोसेफ का एज मिल गया है। तो अभी यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से हम रेफरेंस स्टेटमेंट और कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उसे सॉल्व करके इस सॉल्यूशन को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, हमारा ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उससे रिलेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल्स को कैसे अज्यूम किया है, जोसेफ्स यंगर ब्रदर इज x। तो वेट ऑफ जोसेफ इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो मतलब इसे हमने डबल कर लिया इस जो यंगर ब्रदर के एज को। तो जोसेफ का वेट क्या हुआ 2x। सपोज अभी लेट मैं क्या अज्यूम करूंगा, वेट ऑफ जोसेफ, इसको मैं क्या करूंगा x मान लूंगा, x kg। यहाँ पर जोसेफ वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर एज। मतलब ये जोसेफ का वेट क्या है यंगर ब्रदर से 2 टाइम्स ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ यंगर ब्रदर ये क्या करूंगा मैं, इसे x/2 कर लूंगा, x/2 kg। तो ये क्या हुआ देखिए, जोसेफ्स वेट इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। मतलब ये जो यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर का एज क्या है x/2, और जोसेफ का वेट क्या है 2 टाइम्स दी वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। मतलब ये यंगर ब्रदर का एज है उससे 2 टाइम्स है, उसके 2 टाइम्स है। तो ये हुआ जोसेफ का एज, सॉरी जोसेफ का वेट। अभी इस 2 को कैंसिल कर लिया, तो जोसेफ का वेट क्या होगा x। तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इसे लेकर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर भी सेम आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। x प्लस x/2 इज इक्वल टू 63। तो इसे सॉल्व करेंगे हम,
ये क्या आएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आएगा 3x इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 42। and this 42 is age of, sorry, 42 is weight of Joseph, 42 kg। तो इस तरह से हमने जोसेफ के वेट की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर ली। तो आप वेरिएबल्स को इस तरह एज्यूम कर सकते हैं या इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। ये दोनों मेथड यहाँ पर वैलिड है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इजी लगती है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों मेथड समझ में आए। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, और अगर इसमें डाउट आया तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर हम जो बेसिक कंसेप्ट है ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन को लेकर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसे हम अभी इस प्रॉब्लम के थ्रू स्टडी करेंगे। तो मैं पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। अभी कोई भी फ्रैक्शन होता है, सपोज ये फ्रैक्शन है 6/5, चलिए। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलाकर बनता है हमारा फ्रैक्शन। तो ये हुआ फ्रैक्शन, ये हुआ न्यूमरेटर और ये हुआ डिनोमिनेटर। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं एन अपॉन डी। तो ये इस ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। Numerator of a fraction is 5 more than its denominator। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया गया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें वेरिएबल क्या है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ये दोनों क्या है, अननोन वेरिएबल है यहाँ पर। तो देखिए अभी न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये दो वेरिएबल्स है, इन दोनों का इंटर रिलेशन हमें पता चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रेफरेंस स्टेटमेंट। इफ, अभी देखिए ये यहाँ पर इफ आया है, इफ मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट से ही हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर्म होगा, और फिर हम उसे आगे सॉल्व करके उसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हुआ हमारा रेफरेंस स्टेटमेंट। हमारे रेफरेंस स्टेटमेंट में हमें कह दिया है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर। मतलब सपोज डिनोमिनेटर क्या है, डी है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 मोर देन डिनोमिनेटर। तो ये हुआ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को x एज्यूम करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, 5 प्लस एक्स। तो आप डिनोमिनेटर को x एज्यूम कर सकते हैं या फिर आप न्यूमरेटर को x एज्यूम कर सकते हैं। जब न्यूमरेटर को x एज्यूम करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, d विल बी 5 मोर देन, न्यूमरेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर। मतलब
न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, x माइनस 5। तो जब हम यहाँ पर कंडीशन दिए न्यूमरेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में अगर हम 5 ऐड कर देंगे, x माइनस 5 प्लस 5, अगर इस डिनोमिनेटर में हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर विल बी x। तो या आप इस तरह से वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हैं या फिर इस तरह से, दोनों मेथड्स वैलिड होगी। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। इफ 4 is added to numerator and denominator, the fraction obtained is 6 upon 5, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें एज्यूम करना है पहले क्या, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए, लेकिन हमें न्यूमरेटर भी नहीं पता है और डिनोमिनेटर भी नहीं पता है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पहले लेट न्यूमरेटर बी, सॉरी, सबसे पहले मैं क्या एज्यूम करूंगा, डिनोमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर बी एक्स। तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है। देन आवर फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, x प्लस 1, और डिनोमिनेटर क्या है, x। यानी अभी हमें कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है हमें, 4 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 4 ऐड कर दिए। न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर है और इसमें 4 ऐड कर दिए। और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी 4 ऐड कर दिए। डिनोमिनेटर क्या है, x है, और उसमें हमने 4 ऐड कर दिए। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 6 अपॉन 5। दैट वे देन आवर फ्रैक्शन विल बी 6 अपॉन 5। तो ये हुआ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूजिंग दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अभी आपको पता है कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये x प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 9। और हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका और इसका, तो ये 5 इधर आ जाएगा इस तरह से, और ये जो x प्लस 4 है ये उधर चला जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना, मतलब 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 5x, और 5 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45, इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्या आएगा, 6x, और ये 6 इंटू 4 क्या आ जाएगा, प्लस 6 4 जा 24। अभी यहाँ पर प्लस है तो इस तरह से प्लस आगे लिखते चले जाओ। फिर हम क्या करेंगे, हम अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड में लेके जाना है और नंबर्स को दूसरे साइड में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 5x को इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा,
6x माइनस 5, ये 5 इधर आ जाएगा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू, अभी ये 45 है और ये 24 है, +24 है, ये +24 इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, -24, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 45 माइनस 24, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, 6x माइनस 5x, ये क्या आ जाएगा, x, दैट इज इक्वल टू, और ये इसका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, और ये 4 माइनस 2 2, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2, तो हमें क्या मिला, डिनोमिनेटर इज x, और x की वैल्यू क्या है, 21, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर will be x plus 5, that is equal to 21 plus 5 is equal to 26. Therefore required fraction क्या होगा, x plus 5 upon x, तो x plus 5 क्या है यहाँ पर, 26, और x की वैल्यू क्या है, 21 अपॉन 21, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, 26 अपॉन 21, required fraction. So required fraction is 26 अपॉन 21, ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। अभी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ratna has 200 more than 3 times the amount of Rafiq। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, रत्ना और रफीक है, तो रत्ना के पास कितना है अमाउंट, 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, तो ये रफीक के पास जो अमाउंट है उससे 3 टाइम्स प्लस 200 है, ज्यादा है किसके पास, रत्ना के पास। इफ 300 रुपीज 300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, मतलब रफीक के पास अमाउंट क्या है, RF, और रत्न के पास क्या है, 200 प्लस 3 इंटू आर, तो हमने क्या किया, ₹300 अमाउंट क्या हो गई, रत्ना के पास जो अमाउंट है उसमें से हमने 300 रफीक को दे दिया, मतलब इस अमाउंट में से 300 माइनस हो जाए और इसमें 300 ऐड हो जाए। The amount with Ratna will be 7/4 times the amount with Rafiq. So amount with Ratna will be 7/4 times the amount with Rafiq. तो इस तरह से हमें इस कंडीशन स्टेटमेंट की वजह से हमें ये इक्वेशन मिलेगा, और इस रेफरेंस स्टेटमेंट की वजह से हमें इन दोनों का रिलेशन पता चलेगा, वेरिएबल्स का रिलेशन हमें पता चलेगा। तो चलिए हम अभी वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं। तो हमें क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि फाइंड द इनिशियल अमाउंट विथ रफीक, तो हमें इनिशियल अमाउंट विथ रफीक क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर अननोन वैल्यू क्या है, यहाँ पर फाइंड द अमाउंट विथ रफीक, तो ये हमारी अननोन वेरिएबल, तो इसे हम एज्यूम करेंगे, लेट अमाउंट
initial amount with Rafiq be X rupees. तो अमाउंट विथ रत्ना क्या होगी? इनिशियल अमाउंट विथ रत्ना क्या होगी? देन इनिशियल अमाउंट विथ रत्ना क्या होगी? रत्ना हैज 200 मोर देन 3 times the amount of Rafiq has. तो रफीक की अमाउंट क्या है? x है. तो रत्ना के पास कितना है? 3x प्लस 200. रत्ना के पास कितना है? 200 मोर देन 3 times the amount with रफीक. तो 3 times the amount with रफीक क्या है? 3x प्लस 200 मोर. तो 200 मोर मतलब 200 प्लस. तो ये हुआ इनिशियल अमाउंट विथ रत्ना, 200 प्लस 3x रुपीज. तो ये हुआ हमारा रेफरेंस स्टेटमेंट. इससे हमें जो अननोन वेरिएबल्स है उनका रिलेशन क्या है ये पता चला है. उन दोनों में ये रिलेशन है x और ये 200 प्लस 3x. अभी ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है देख, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम आगे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. हमें गिवन कंडीशन क्या दी गई है? इफ रुपीज 300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना. तो अमाउंट विथ रत्ना क्या है? 200 प्लस 3x. उसमें से क्या किया? 300 रुपीज अमाउंट निकाल लिया. इस अमाउंट में से 300 रुपीज निकाल लिए और रफीक को दे दी. हाँ, तो रफीक को दे दिए मतलब रफीक की अमाउंट क्या है? इनिशियल अमाउंट क्या है रफीक के पास? x. तो अब ये 300 यहाँ से निकाल कर रफीक को दे दी. देन अमाउंट विथ रत्ना विल बी 7/4 times the amount with रफीक. तो अमाउंट विथ रत्ना क्या बची है अभी? ये अमाउंट विथ रत्ना है, विल बी 7/4 times अमाउंट विथ रफीक. तो इस तरह से हमने ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा. देखिए 300 रुपीज फ्रॉम रत्ना. तो रत्ना का अमाउंट क्या है? इनिशियल अमाउंट क्या है? 200 प्लस 3x. तो रत्ना के अमाउंट में से हमने 300 रुपीज निकाल ली. रत्ना के अमाउंट क्या है? इनिशियल अमाउंट ये. तो उसमें से हमने 300 रुपीज निकाल ली और उसे हमने रफीक को दिया. रफीक की इनिशियल अमाउंट क्या है? x है. तो हमें रफीक के पास कितने पैसे मिलेंगे उसे 300 रुपीज देने के बाद? x प्लस 300. तो इस तरह से इन दोनों के अमाउंट हमें न्यू अमाउंट हमें मिल गई. तो इस न्यू अमाउंट में रिलेशन क्या है? अमाउंट विथ रत्ना विल बी 7/4 times अमाउंट विथ रफीक. तो रत्ना के पास जो पैसा है, रत्ना अमाउंट इज 7/4 times 7/4 times amount with 7/4 times amount with रफीक. तो अमाउंट विथ रफीक क्या है? x प्लस 300. तो अभी आपको पता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो ये मिला हमें इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो अभी इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे. अभी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे.
200 plus 3x minus 300 इज इक्वल टू 7/4 और ये ब्रैकेट क्या होगा x plus 300। अभी ये 4 इस टर्म से डिवाइडेड है, तो अगर ये 4 हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा इस टर्म को। तो इससे हम अभी 4 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये 4 इंटू 3x और ये -300 प्लस 200 है, क्या आ जाएगा -100 और ये 7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x plus 300। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अभी ये यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। कैसे? 4 को 3x से मल्टीप्लाई करो और फिर इस 4 को 100 से मल्टीप्लाई -100 से। यहाँ पर भी वही करना है, 7 को x से मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस 300 से मल्टीप्लाई। तो चलिए अभी इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो 4 इंटू 3x क्या आएगा 12x और ये 4 इंटू 100 क्या आएगा -400 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 7 3 21 2100। तो अभी वेरिएबल्स को एक साइड में लेना है और नंबर्स को दूसरे साइड में ट्रांसफर करना है। तो क्या मिलेगा हमें 12x और ये +7 है, इधर आके -7 हो जाएगा और ये +24 है, तो उधर जाके ये -400 है, तो उधर जाके +400 बन जाएगा। तो ये 2100 प्लस 400 देयरफॉर 12 माइनस 7 क्या आएगा 5x दैट इज इक्वल टू और ये 0 0 4 + 1 5 और ये 2। तो देयरफॉर x विल बी 2500 अपॉन 5। Therefore x is equal to 5 1 the 5 5 5 the 25 और ये 100। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 500। तो अमाउंट विथ रफीक क्या है? अमाउंट विथ रफीक इज ₹500। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हमें फाइंड आउट क्या करना था इनिशियल अमाउंट विथ रफीक। तो यहाँ पर लिखना है इनिशियल अमाउंट। देयरफॉर इनिशियल अमाउंट विथ रफीक क्या है 500 रुपीज। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरह से हमने यूजिंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने इनिशियल अमाउंट विथ रफीक को फाइंड आउट किया है। और उसे फाइंड आउट करने के लिए ये रेफरेंस स्टेटमेंट और ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसे हमने यूज किया है। तो इस तरह से हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल को यूज करते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आशा करता हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स है उन्हें कैसे यूज करना है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।